गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह दिन आपकी इस जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उसका अंतिम दिन होगा। आज के बाद हम लोग यहाँ तो नहीं मिलेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर कभी कभी विषय पर हमारे व्याख्यान होंगे तो इसमें हम सब जरूर एक दूसरे के साथ शामिल होंगे। तो आज हमारा चूंकि अंतिम है सेशन, तो इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं पेंडिंग वो आप कोशिश करके पूछ लीजिएगा। जी सभी को ओके मेरा मैम। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। ओके, फर्स्ट वन, लक्ष्मी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए अपने ऑडियो और वीडियो को ऑन करके। लक्ष्मी यार। Namaste, ma'am. नमस्कार जी। Ma'am, I have 3 questions today. हाँ जी। You were talking about tablet thinner, 111.5 tone. So if we put this point for people, like they will reduce the the intensity of that medicine. So over a period of time, they can stop the medicine. Yeah, definitely. Okay. And second question, for knee pain, we use ST45 and JD1 sedate. And madam, it covers the bone, synovial fluid, everything it covers for that? No. Point? No. It covers, it changes actually in synovial fluid level. It Okay. actually works on the acid and alkalinity of our blood and fluid. Okay. Yeah. Then So it cannot change your bone or cartilage or everything, but okay. yes, it is working on your synovial membrane and their decades. Okay. Madam, third question. For shoulder pain, this can we, if it is related to muscle, GB34 will do? GB34, yes, you can do, but it will work general. Okay. If you want to treat shoulder pain, so here you have to first diagnose. Diagnosis is very necessary for everything, every disease. Because First, you have to know about what is the root cause of shoulder pain. Okay. Shoulder pain or shoulder pain, it is general muscle pain. It is working, no doubt, but for good and instant relief, you have to first diagnose, I think. Okay. Actually, I myself have, madam. I went to the orthopedic and he said one of the muscle, it is very minor, one of the muscle has been strained, he told. You have to just find out at Google what is the reason for your shoulder pain. Okay. It is right shoulder pain or left. Right shoulder. If it is left, then causative factor is different. If it is right, causative factor is different. Yeah, so I have. There is your problem. You will have to find out yourself. Okay. Okay, because I have right shoulder pain only. Yeah. So I thought whether GB34 will work or not. That is why I asked. May work or may not. May or may not be. Okay. Yeah. Thank you, madam. Thank you. We will be missing you a lot from tomorrow onwards. We are waiting for the next class, madam. There's no need to miss anyway. I have to just get together soon. So we are waiting for next class, ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you, madam. Okay. Welcome. Start. Moving to next, परमजीत जी, ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। परमजीत जी। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैम, मैं पूछ रही थी कल लिगामेंट क्या रीजनरेट हो सकते हैं और नी का स्पेशली अगर
मतलब लिगामेंट क्या उसमें जोर भी बहुत पड़ता है, तो क्या रीजनरेट होगा, कैसे उसको कर सकते हैं? जी मैडम, आपका 100% लिगामेंट 100% रीजनरेट होता है, टाइम लगता है इसमें। हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए पूरा हमें डिटेल देखना होता है, उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि एक्चुअली लिगामेंट कैसे क्या डिजनरेशन हुआ है, कब से जैसे हुआ। ट्विस्ट कर जाए कोई, किसी का मतलब पैर ही नहीं, मतलब ट्विस्ट कर ट्विस्ट गया कर। तो वो, अगर वो ट्विस्ट कर गया तो वो कार्टिलेज डिजनरेशन नहीं है। अच्छा। तो पहले आपको श्योर होना चाहिए ना कि आप पूछना क्या चाह रही हैं। हाँ नहीं, हम श्योर ही था इसलिए पूछ रही थी मैं, मतलब हाँ, नहीं, ये अगर वो जानना चाहते डिजनरेशन थे की बात करनी है तो पैर ट्विस्ट होने पर कार्टिलेज डिजनरेट नहीं हो जाता, है ना? भाई, उसको मतलब सर्जरी कराना चाहिए या एक्यूप्रेशर से भी ठीक हो सकते हैं, मतलब इसलिए अ, पूछ रहे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है ना कि वो कार्टिलेज कितने हद तक डैमेज है, पेशेंट की एज क्या है, वो कितना रेगुलर होके करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। हैं। जैसे पेशेंट तो 38 प्लस है, लेकिन वो आराम से सारे काम उसके होते हैं, दौड़ना भागना एक्सरसाइज सब कुछ होता है, तो क्यों वो चेंज करवाना चाहता है? जब वो दौड़ रहा है, लेकिन जो भाग रहा टूट गया है है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए। जी, देखिए हाँ। आप लोगों से मैं कई दिनों से लगातार विनम्र निवेदन कर रही हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछें, है ना? मैम खाली मैं यही पूछ रही कि हो सकता है या नहीं हो सकता, तभी इस तरफ हाँ, जाया जाए। मैंने बताया ही ना कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब हाँ तक मुझे सारी जानकारी नहीं होगी, मैं कैसे बता सकती हूँ? हाँ। अगर कोई भी हो, केवल आप उसका रोग का नाम बता दीजिए तो कोई कैसे हेल्प कर पाएगा? जैसे गॉल ब्लैडर का बोलते हैं ना कि रीजनरेट होता है, इसलिए मैंने पूछा मैम हाँ, कि ये नहीं, भी ये क्या बात चीज हो ये सकती है। रीजनरेट हो सकता है और हाँ। कई मामलों में हुआ भी है। हम्म। और अच्छी खासी मात्रा में मतलब डिजनरेशन हुआ तो उसका भी रिकवरी हुआ। लेकिन हम्म। आपके केस में होगा या नहीं होगा, ये भी डाउटफुल है। नहीं मुझे तो नहीं है मैम, कोई नहीं, पेशेंट मैं है आपकी इसलिए। बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जैसे आपके केस में होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकती। क्यों? हाँ जी। पेशेंट सामने नहीं है, उसकी प्रॉब्लम हमें श्योर नहीं है तो ऐसे नहीं बताया जा सकता। ठीक है? हम्म। हाँ, और मैम जो जैसे हम इन्फेक्शन के पॉइंट लगाते हैं ऑर्गन के हिसाब से, तो जो हाँ, हर्पीस का वायरस है वो नर्व्स में रहता है, तो उसको कैसे हाँ, ट्रीट हो सकता है वो? हाँ। हर्पीस जो नर्व्स है उसका इस इन्फेक्शन के पॉइंट से नहीं निकले। अच्छा। उसके लिए हमें अलग जो चैप्टर है हर्पीस का उससे देख करके और तब डिस्कस करना होता है, क्योंकि ओके। हर्पीस भी बहुत डिफिकल्ट होती है। वहाँ पर है कितने कई प्रकार की हर्पीस जो होती है। हर्पीस जोस्टर हाँ। इंफेक्स है, नाइटो कई तरीके की होती है। हाँ जी। किस आधार पे दिया जाता है? तो मैम जो कई को पेशेंट को पीरियड से पहले ना पिंपल्स आ जाते हैं एकदम कुछ दिन पहले, ये क्या हाँ, हीट बढ़ गई है या क्या कारण होते हैं? हीट भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हाँ जी। जी, और इसी तरह दूध पीने से कुछ पेशेंट को उसी टाइम पिंपल आ जाते हैं, ये भी हाँ। हार्मोनल है मैम? ये तो हार्मोनल नहीं, तो साफ-साफ दिखता है कि एलर्जिक है कुछ। अच्छा। ठीक है मैम, एक और पूछना है कि जैसे हम लोग बच्चे दांत जो ग्राइंड करते हैं सोते हुए, तो बोलते हैं कि पेट में वॉर्म्स हैं, लेकिन हाँ, जो ओल्ड एज में लोग दांतों को ग्राइंड करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि टेंशन की वजह से है ये, हाँ। तो ये मतलब ये क्या कारण है, तो इसका कैसे मतलब हो सकता है कि इसको? तो आप खुद ही बता दिया कि डॉक्टर बोलते हैं टेंशन है, हाँ, तो वही कारण है उसका। तो टेंशन को ठीक किया जाए। टेंशन को ठीक करिए। हाँ मैम, ठीक है मैम, इतना ही मेरे सवाल थे, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम, नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अशोक शर्मा जी। अशोक जी, आपका कल क्वेश्चन रह गया था, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अशोक शर्मा जी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। श्याम सुंदर फ्रॉम हैदराबाद। आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन के क्वेश्चन कीजिए, श्याम सुंदर जी।
जी जी सर, आप अपना क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। स्लीप एपनिया के बारे में थोड़ा सा जानना था मैडम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, या फिर आप किसी जगह पे रुक जाइए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। मुझे स्लीप एपनिया के बारे में। ओके, नेक्स्ट बिंदु भास्कर जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर क्वेश्चन कीजिए। बिंदु भास्कर जी। Namaste, ma'am. नमस्कार। In this color session, we'll be meeting today last. So, Yeah. I would like to wish you Happy New Year, ma'am. Thank you so much. I'm wishing Yeah. you the same to all. Thank you, ma'am. And all the participants who are there, I'm wishing them also from this Yeah. platform. Ma'am, we were you told about the blood thinner point, ma'am, TW5 tone. Is there anything as blood thickening point, and if it is there, for what we will be using it and what is it? TW5, if you sedate, it will work as a blood Thicker. So for what will be using, ma'am? For will be using it for healing of the wounds, like, or in patients of thrombopenia patients or something like that, we will be using blood thickening point. Properly, your voice is interrupting here. Yeah. Blood thickening point. Yeah. In what context will we be using? Okay. Sometimes patient feels bleeding because of blood thinning. Okay. Like hemophilia and like other problem. Okay. So in that cases, we recommend that blood thicker point. Okay. Yes. Okay, ma'am. Yesterday I was also asking you about the ligament thing, ma'am. Is it there anything in about ligament in our any of the treatises, ma'am? Yeah, of course. And which treatise, ma'am? See the ligament. Treatise 22. Okay, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Each type of ligament you can hear, and you can easily buy this. Okay. So okay. So in this we will have it is explained everything in this. Yeah. And one more question, ma'am. This is about this. If a person has ovary tumor or something like that, and the ovaries have been removed, is there a chance that this person will have a tendency to develop nodes or lesions or something like that in their body? Yeah. So it is they'll have a tendency. Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I just wanted to advise one of my patients, so I just wanted to clarify that, ma'am. Thank you very much, ma'am. Happy New Year again, ma'am. See you soon. Bye. Okay, bye. मूविंग टू नेक्स्ट, रेवती सुरेश, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। रेवती जी। नमस्ते अर्चना मैडम। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। Your hat is looking so nice. Your winter dresses are very nice. Every day we'll appreciate. Thank you. Okay. आपको ये आस की बात है, मैं कैसे बताऊं कि मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है। नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है मैडम। जबरदस्ती मुझे रोज का रोज जोकर बनना होता है। No. We are also focusing on the matter. We are not only focusing on your dresses. Don't worry.
Thank you, madam. Madam, एक तो first thing I want to really thank you from my heart कि आपने 1 हफ्ते का क्लास बोला और 2 हफ्ते का हमारा चालू है. It is like a television serial never ending and we are very thankful for that. छोटा डाउट्स, बड़ा डाउट्स, हर जगह से आपने इतना हमको सपोर्ट किया. Very blessed to have your guidance. ओके, थैंक यू. Thank you very much, madam. अभी कमिंग टू डाउट्स, ये जो लिगामेंट का हीलिंग होता है वहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है. सो हाउ डज आवर पॉइंट वर्क इन हीलिंग द लिगामेंट्स? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुना देती हूँ. यस मैडम. वो स्टोरी ये है कि 2017 में मेरा जो लेफ्ट नी था उसका फ्रैक्चर हो गया. और छोटी सी इंजरी थी, मुझे लगा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसमें क्या था कि बड़ी इंजरी हो गई थी. उसमें जो पटेला था वो जेड शेप का टूट गया था. और उसके बीच में ना ये लिटिल फिंगर जैसा गैप आ गया था. माय गुडनेस. और साथ में एसीएल और एमसीएल टूट गई थी. तो मेरा जो नीचे का वो था बिलो नी हैंगिंग था. ओह माय गॉड. आपको मैं देखूं, शायद मेरे पास अगर लैपटॉप में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. माय गुडनेस. हाँ, तो उसका मैंने पेपर प्रिंट किया था ना, इसलिए मेरे पास में रखा होगा. तो वहां पर ये टूट गई. अब मेरे पास में एक और ऑप्शन था, वो सर्जरी था. डॉक्टर ने सर्जरी रेकमेंड किया, विदाउट सर्जरी कैन डू एनीथिंग. लेकिन मुझे ट्राई करना था कि अपना इक्विपमेंट लिगामेंट में कैसे काम करता है. बोन का तो ठीक है, आप प्लास्टर कर लेंगे या नहीं भी करेंगे, आप स्ट्रेट करके जुड़ जाएंगे. जो चीज कोई आपकी थ्रेड है ना, थ्रेड टूट गई, इलास्टिक है वो टूट गई, तो वो इलास्टिक वापस कैसे जुड़ेगी वो मुझे देखना था. डॉक्टर ने बताया उसको स्टिच करके उसमें स्टिच कर देंगे तो हो जाएगी. मैंने कहा ठीक है. मैंने सोचा कि ये ट्रायल का इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर वाला दोबारा देगा नहीं देगा, गॉड नोस. ओह माय गॉड. तो आप ट्राई कर लो. तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे नी का प्लास्टर कर दो. उसने बोला पेशेंट की मर्जी से मैं नहीं करता. मैंने कहा आप पेशेंट की मर्जी से नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस हो तब तो कर सकते हैं ना. मेरे पास में फाइनेंशियल क्राइसिस अभी मेरे पास नहीं. और ये जो मेरे साथ आए मेरे फैमिली मेंबर, मेरे नेबर हैं. तो इनके पैसे दे नहीं सकती, तो आप मेरे को प्लास्टर करो, मैं मेरे को जाने दो, मैं वहां से अपने पैसों का अरेंजमेंट करके और उसके बाद मैं आती हूँ टुमारो मॉर्निंग. और वो कन्विंस हो गए. और उन्होंने, मैंने कहा प्लास्टर कर देंगे, बोन अपनी जगह पे रहेगी, वो हिलेगी नहीं. आप ही के यहाँ सर्जरी करानी मुझे टुमारो मॉर्निंग पक्का. आप अपना चार्जेस वगैरह बता दीजिए कितना क्या लगना है, वो अरेंज करके कर देंगे. उन्होंने बोला ठीक है, अपना सारा बना दिया. मैं घर पे आ गई. मैंने सीजर उठाया, सबसे पहले अपना प्लास्टर कट करके किनारे कर दिया. मुझे लगा अभी रिसर्च का मौका हाथ से चला न जाए, तो वो कट किया. देखो तो मेरा पूरा जो लेग था वो नाइट वो ब्लैकिश में कन्वर्ट हो रहा था. यानी कोई ब्लीडिंग अच्छी सी हो गई थी अंदर अंदर. बाहर से कुछ भी कोई कट नहीं था, लेकिन भीतर पूरा कट आ गया. समझ में आ गया कि कुछ तो अंदर बड़ी गड़बड़ हो गई. तो मुझे लगा कोई नहीं, सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करने पॉइंट लगाएं. तो सिंगल पॉइंट यूज किया, स्पेसिफिक स्टोन. और वो ब्लड 7 डेज में पूरा नॉर्मल हो गया. इसके बाद सेकेंड टारगेट था वो था बोन का रीयूनियन करने का और साथ में लिगामेंट का, क्योंकि मेरा जो बिग टो था वो ऐसे भी नहीं होता था. लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कि अगर मैंने बता दिया तो वो ले जाके सीधे ओटी में हमें बिठा देंगे. तो मैंने एक बड़ी सी बेल्ट अरेंज की थी. उस मुझे जब कोई बोलता पैर हिला, मैं बेल्ट हिला देती. मेरा पैर बिल्कुल हिलता है, एकदम नॉर्मल है. मैं उसको हिला नहीं रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो.
तो मैं उसको बहुत रेस्ट दे रही थी, एलिवेट कर रखा था ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर आए और जल्दी हील हो जाए। उसके बाद मैंने 15 डेज तक कंटिन्यू किया और मैंने देखा डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा पेन होता था यहाँ पर कि लिगामेंट अगर नहीं जुड़ा तो कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन वहाँ पे आई फेल्ट कि यस, मेरा जो बिग टो है वो यूं मूव कर गया। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। आई वाज सो हैप्पी कि लिगामेंट और टेंडन भी वापस कनेक्ट हो सकता है। अब हो गया। बोन तो ज्वाइन होना मेरे लिए सिंपल प्रॉब्लम, करेक्ट। लेकिन ये लिगामेंट का टियरिंग होती तो भी आती, वो पूरी टूट गई क्योंकि ये स्ट्रिंगिंग हो रहा था मेरा पैर। माय गुडनेस। तो जिस दिन वो जुड़ा ना, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत खुश हुई कि मतलब किसी भी लेवल तक जाकर के ये काम कर पाएगा। फिर मैंने 45 डेज बाद में सेकेंड अपना एक्सरे जाके निकलवाया। उस डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया कि आप अपनी ब्रेवरी ना दिखाएं, एक बार सर्जरी करा लें। मैंने कहा यहाँ से जाने के बाद मैं सीधे सर्जरी टेबल पर ही मिलूंगी आपको, यहाँ से जाने दीजिए। उसने फिर जाने दिया और 3 मंथ्स में मेरा जो लेग था वो 100% ओके हो चुका था। विदिन 3 मंथ्स पैर पूरा इस तरीके से फोल्ड हो सकता था, स्ट्रेट हो सकता था कि मैंने एकदम स्ट्रेट करके रखा था कि फाइन हो जाए। तो ये बताता है कि बोन ही रीयूनियन नहीं हो सकता, लिगामेंट और टेंडन भी फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने सीखा था, नहीं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपने कोई पेन किलर या एंटीबायोटिक कुछ नहीं लिया? नथिंग यू हैव टेकन? नहीं लिया था मैंने। वाओ। मुझे लगा कि अगर मैं पेन किलर लेती हूँ तो पेन से मुझे रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे सामने आता है, उसको कितना पेन है ये मुझे कैसे फील होगा। और मान लीजिए मेरे मन में आया इग्नोर कर दूं पेशेंट को, अच्छा पेन हो रहा है कोई बात नहीं, अभी के बाद तुम्हारा नंबर आने वाला है, अभी तुम बैठ के वेट करो। अभी कम से कम यहाँ फील होगा तो उसको हमें प्रायोरिटी देनी है, उसको इतना पेन हो रहा होगा। तो पेन की फीलिंग कैसी होती है मुझे वहां देखना है। तो मुझे देखने का ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी और मैं बहुत खुश हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझे इस लायक समझा कि उसने ये दिया। लेकिन ग्रेट मैडम, यू वेंट थ्रू ऑल दैट पेन एंड ऑल दैट सहन शक्ति एंड ऑल दैट। ग्रेट। नहीं, मुझे देखना था एक्चुअली, लोग का देखा था वहाँ अनुभव करके लगे हुए हैं, किसी का एम्पुटेशन है। डॉक्टर ने एम्पुटेशन मेरे को बोला लास्ट में कि आपने नहीं कराया तो ये ब्यूटिफिकेशन हो रहा है पूरा, बिल्कुल एकदम ब्लैक। आपको मैं अभी दिखाऊंगी स्किन शेयर कर मिल गया तो कि अगर आपने नहीं कराया तो आपका एम्पुटेशन करना पड़ेगा थाइस। तो मैंने उनको आंसर दिया कि कोई बात नहीं, आई हैव टू। अगर आप 1 लेते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आधी अपनी लाइफ को 2 से निकाल के ले आई तो आधे 1 से चला लूंगी, फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला है। मैं यहाँ अपना इंतजाम कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। मैं एक आखिरी ऑप्शन इससे देख लेती हूँ, नहीं हुआ तो एम्पुटेशन अगर होगा मेरी डेस्टिनी में, अगर एम्पुटेशन ही होगा तो उसको कोई नहीं बचा सकता। मुझे पहले ट्राई करने को तो आप मत किए ना, एक बार ट्राई करने दीजिए। बट इट रियली वर्क मैडम। आपका इंटरनल वो ब्लीडिंग भी जैसे क्लियर ऑफ हुआ एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एवरीथिंग हील्ड अप, तो इट इज समथिंग अमेजिंग। यस, इट वाज एक्चुअली अमेजिंग। अब मैं बहुत खुश हुई थी। सो नाइस। ये कैसे हो सकता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि काम करेगा, लेवल पे काम करेगा, बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि देखती हूँ कहाँ तक करेगा, जहाँ तक करेगा ठीक है, जहाँ नहीं करेगा सर्जरी वो तो है, ये लास्ट रिसोर्ट। लेकिन मैंने एक ऑप्शन और भी रखा था कि अगर मैंने सर्जरी कराई तो फिर मैं एक्यूप्रेशर को टाइम दे दूंगी कि जब ये बेकार है तो क्या करना है इसका। मैं कोई और अपना बिजनेस प्लान करूंगी, लेकिन यहाँ नहीं आऊँ दोबारा। अच्छा हुआ जो वर्क करे, वरना हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑल देयर वेटिंग टू। उसको काम कर गया तो मुश्किल हो जाती। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ बट ऐसे अनुभव जो भी आपके पेशेंट्स का आपका होगा प्लीज शेयर, तो अच्छा लगता है। एंड वी ऑल नो द एक्सटेंट ऑफ जितना हद तक ये काम करता है, द लिमिटलेस है जैसे। जी जी जी, ये तो बहुत ही वंडरफुल था मेरे लिए। हाँ, मैं बहुत अमेज्ड हुई थी कि ऐसे कैसे कर सकता है। great. जैसे जैसे वो रिजल्ट मुझे दिखाता था, मैं खुद ही बहुत बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाती थी। सर को शेयर करती थी, सर ऐसा हो गया, बोले सच में? हमने कहा हाँ हो गया। बोले देख लो, थोड़ा अलर्ट रहना। मैंने कहा सर मैं अलर्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप लोगों के भाग्य से खुल गया। ये मैं पेपर प्रेजेंट कर दिया, मैंने कहा ये तो रिसर्च पेपर हो गया भाई। वाओ। तो ये और नी फ्रैक्चर था, टॉपिक ने बनाया था, नी फ्रैक्चर सॉल्व विदाउट एनी डॉक्टर, प्लास्टर एंड मेडिसिन। और आप ये गिरे थे क्या? यू लैंडेड ऑन योर नी, कैसे टूटा आपका पेटेला? मेरा पेला टूटा था। मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही थी और वहां पे छोटा सा एक जगह थी, वहां पे जो जमीन थी ना थोड़ी सी खराब थी, उसमें मेरा एंकल था वो ट्विस्ट कर गया। ओह माय गॉड, ओके। और मैं गिरी, मेरे ऊपर बाइक आई, मेरी जो स्कूटी वो आई, और मेरा जो नी था ना, वहीं पर एक ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है ना, सीवर जैसा राउंड सा, उसका जो पत्थर था उसका कॉर्नर मेरे घुटने से टकराया। ओह वाओ, लेकिन शार्प मुझे इंजरी। फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि उस समय मैं जा रही थी रेजिडेंशियल का लेक्चर लेना था मुझे। और मैं वहां गई थी, मैंने 6 आवर कंटिन्यूअस उस दिन क्लास भी लिया था। आपको दर्द नहीं हुआ था? पाँव में गड़बड़ है नहीं मालूम हुआ? हो रहा था, हाँ, लेकिन मैंने कहा फील करो कहाँ होता है। और इवनिंग में जब वापस आई तो अपना हमने एक्सरे कराया, एक्सरे करा के वापस आ गई। के बाद में मैंने डिसाइड किया कि एक बार प्लास्टर लगा के फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, तो दैट विल बी बेटर। प्लास्टर ये डाल के था। निकाल भी दिया आपने? हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं छोड़ते और घर वाले मुझे वापस नहीं आने देते ना, वो तो वहां पे डाल देते। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर बोल रहा है कि कल आना, और डॉक्टर ने बोल दिया ये मेरे नेबर है, फैमिली मेंबर नहीं है, ये मुझे ले आए हैं, मुझे घर जाने, मैं कल पैसे का अरेंज करके उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये जो मैंने बताया ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल, सो नाइस। शेयर करेंगे मैडम ये आपका पेपर? कहाँ मिलेगा हमको, या फिर आप शेयर करोगे? ये मैंने पब्लिश किया था अपनी मैगजीन में, लेकिन मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ, और आपके इसमें यूट्यूब में चला जाएगा तो कोई भी देख सकता है। ओके, है ना? Today I want to share, मैंने लिखा था, today I want to share my fantastic view with miraculous result of my knee fracture which was cured without any medicine, plaster, physiotherapy. Physiotherapy is normally used after reunion of bones for easy movement of leg which is disturbed in the time of prolonged rest. Or doctor, all was achieved because of this amazing acupressure therapy. On 4th May 2017, my left knee had fractured due to falling down at home. It was a compound fracture of kneecap, patella, or sesame bone. An eminent orthoped doctor suggested immediate surgery after seeing my X-ray. But I decided that I have to join my bone without any surgery with only acupressure therapy. Because I had seen so many patients in my acupressure journey during the last 20 years, patients who were suffering from serious disease but cured here easily. तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था. I started my treatment myself being acupressurist. First of all, I put my magnet to stop bleeding because my injured leg was getting black due to rupture of quadriceps ligament. After 8 days, my leg turned into normal leg, but I couldn't lift my leg even an inch because of bone fracture and ligament rupture. All this was due to severe deficiency of calcium and hemoglobin. Then I applied magnet for good blood circulation, hemoglobin increase, and calcium absorption. I also took calcium-rich diet like lime water, roasted gram seeds, jaggery, and milk. Along with this, I used brace and walker for straightening my leg for faster result.
वॉशरूम वगैरह जाना है तो कहीं नी में मूवमेंट आए, तो इसके लिए मैंने किया था। After 3 months on 10th August, when I visited a radiologist for knowing my bone condition, by X-ray, my knee had completely healed. After seeing my X-ray report, he was surprised and said to me, "How you heal this serious matter without any allopathic medicine or surgery or any other therapy other than acupressure?" I humbly replied, "Sir, this is the potency of acupressure, and its mystery has been justified by our institution headquartered at Allahabad, with over 150 centers around the country treating lag periods patients." फिर ये मैंने पूरा पिक्चर दिखाया था कि कौन सी ये लिगामेंट्स होती हैं, कैसी होती हैं। तो ये पूरी स्टडी मैं लेट कर की थी। काम नहीं था, तो मैं खूब आर्टिकल लिखती थी उस समय। ये सारे काम मैंने किए थे। ये मेनिस्कस होगा तो ये यहाँ गया होगा तो ये होगा, कौन कौन से होते हैं लिगामेंट। ये ऑन 7th में 2007, ये आप देख रहे हैं ना छोटा सा स्कार, इतनी इंजरी हुई थी मुझे, बस ब्रूज ऑन, ब्लीडिंग भी हुई थी। इसके बाद ओह माय गॉड ये स्टार्ट हुआ। देखो पैरों की स्वेलिंग काफी ज्यादा हो गई। पहले ये था, उसके बाद ये पैरों की स्वेलिंग थी। फिर और इस तरीके से हुआ, फिर और ये गया। ओह माय गॉड मुझे लगा ठीक है, ऐसा पूरा हो गया, पूरा काफी स्वेलिंग आ गई। ये पूरा लेटे लेटे आपने अपना पेपर प्रेजेंटेशन तैयार कर दी। हाँ, मुझे लगा था ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, कल ब्लीडिंग जाए तो क्या करूंगी। स्टेप बाय स्टेप या और फिर ट्रीटमेंट चला और ये देखिए मेरे पैर नॉर्मल हो गए। ओह माय गॉड, सो नॉर्मल। एंड इट टुक ओनली 7 days. ओह, जो भी ब्लड का वो ब्लैकनेस एंड एवरीथिंग बिकेम ऑलराइट। यस, 7 days। उसके बाद मैंने दोनों नी को मैंने कंपेयर किया। तो मैंने देखा यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है और यहाँ पर हेयर ग्रोथ हो गई। इतनी एरिया में हेयर ग्रोथ है जहाँ पर फ्रैक्चर था। तो मैं समझ गई कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है, तो अंदर बोन लिगामेंट भी ऐसे ही हो रहे होंगे। मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद ये देखिए ये कंडीशन थी मेरे नी की, ये गैप, ये और ये। उन्होंने बोला था वायरिंग करनी होगी, और ये भी है। एक ऐसा और एक यू जेड शेप में है। तो उन्होंने बोला विदाउट वायरिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ये कैलस बन गया। उसके बाद ये आ गया। मैडम आप सर्जरी कराते ना तो भी इतना आप फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट आना मुश्किल होता था। अभी आप वज्रासन भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह था फर्स्ट SP6 टोन फॉर ब्लीडिंग और ब्लीडिंग। एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह भी हमने पूरी सर्च कर दिखाया लोगों को। क्या करता है ये, tonifies blood and bleeding disorder is master point to stop bleeding and point selection for knee fracture. It was a spleen quick deficiency for hemoglobin and calcium and function of spleen. How I selected these points. The spleen controls blood, the spleen controls muscles and the limbs. The spleen is responsible for transformation and transportation. The spleen controls the uptake and the spleen houses thoughts. इतने काम। स्प्लीन और थॉट्स का भी है रिलेशन। हाँ, फिर उसके बाद मैंने किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट्स लिए
Kidney yang is responsible for warming function of the body. It produces bone marrow and controls bone. Bone marrow is the spongy tissue inside some of the bones. 200 billion new blood cells are made by the bone marrow every day, along with the white blood cell and platelet. Around 1% of the body's red blood cells are regenerated every day. Bone marrow manufactures between 150,000 450,000 platelets. platelets per microliter of blood, the amount of blood that fits on the head of a pin. अब उसके बाद ये सारा हो गया. After reunion of bone, my legs was straight like bamboo. I couldn't bend my leg even in 1 inch. Physiologist Dr. Gupta said it will take 4 to 6 months to bend properly. Please consult any good physiotherapist. I started simple movement myself. After 3 months, I achieved complete movement. Now I can bend my leg properly. I can walk without any support. तो ये था पूरा. So I fulfilled my promise. And what was my promise? Medicine free India. Great. तो ये था. Wonderful, madam. Thank you for sharing such a wonderful experience. Yeah. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले पूरी हमें स्टडी करनी होती है. ऐसे कि कोई भी पॉइंट बस बोल दिया कि नहीं आप ये लगा लो तो हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता. मैडम अपने एनाल्जेसिक पॉइंट नहीं डाला. मैं एनाल्जेसिक ले लेती है तो मैं दूसरा पेन कैसे फील करती. तो खाली आपने जो अपना लेग को स्ट्रेट रखा उसी में मूवमेंट बंद किया तो आपका पेन नहीं हो रहा था ज्यादा, या फिर आप पेन सहन कर रहे थे? अनबियरेबल. Exactly. Bone breaking is like terrible. Yeah. Was unbearable. और मैं लेक्चर ले रही थी, मुझे पेन के आउट्स आते थे अच्छे वाले. तो जब मेरे पेन आता था तो मैं अपने स्क्रीन की तरफ देख रही थी. और जब पेन होता था तो मैं सामने देख के पढ़ाती थी. तो पता नहीं चला कि ऐसा हो गया. लंच ब्रेक जब हुआ, मुझे मॉर्निंग 9 o'clock से मैंने 1 o'clock तक कंटिन्यूअस लेक्चर लिया. 1 o'clock में जब लंच ब्रेक हुआ, I couldn't stand even. क्योंकि इतनी स्वेलिंग आ गई ना पूरी. लेकिन जो स्टूडेंट्स थे, उनका कमिटमेंट मैंने पहले से कर रखा था कि कल को मैं ये बताऊंगी. तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर वगैरह उस समय मुझे आता भी नहीं था, उस समय स्टार्ट भी नहीं हुआ था ये सब. इसलिए वो किया. और उसके बाद तो लोग बोल रहे थे कि अभी कल लेक्चर लेगी क्या. मैंने कहा नहीं, अभी तो टाटा बाय बाय. अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने. Yes, madam. What a great commitment. Thank you, madam. We'll be in touch. आगे अभी पढ़ते कि अगर ये मैं करती हूँ तो मैं दूसरों को बता पाऊंगी. Yes, madam. अगर नहीं होता तो मैं बोलूंगी कि भाई इसका ट्रीटमेंट हमसे नहीं हो सकता, आपको कहीं और जाना चाहिए. ये मेरा मन था. बाकी तो सर्जरी उसके बाद लास्ट ऑप्शन थी, मेरे पास भी लास्ट थी. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एम्पुटेशन प्रॉब्लम. अपने एक्यूप्रेशर को ही टेस्ट दे दिया. Knowing your limit कैसा है क्या. Thank you, madam. And once we go through the PDF and try some cases वगैरह, तो अगर वो टाइम में कुछ डाउट हुआ तो we will be in touch. Definitely. Sure. And अपने हुमेरा मैडम तो है, so no problem. Thank you. बिल्कुल. Thank you, madam. नमस्ते. नमस्कार. ओके. नेक्स्ट सतवंत सिंह जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए. सतवंत सिंह जी. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. मैं वीडियो तो नहीं मैडम, जरा 1 मिनट लगेगा. आपकी ड्रेस देख के मैडम बहुत अच्छा लगा. तो एक तो ये है, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद सर. धन्यवाद. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. हाँ, थैंक यू मैडम. एक ही मैडम मेरा क्वेश्चन है कि अगर स्पाइडर लेग के ऊपर हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए. एक तो वेरिकोज वेन होती है, एक स्पाइडर होते हैं. सर जो स्पाइडर वेन है वो बहुत डिफिकल्ट है. वो सिरोसिस के केसेस में दिखता है. हाँ, उसकी पूरी स्टडी सर करनी होती है हमें. उसका कुछ ट्रीटमेंट या कुछ बता पाएंगे?
सर बता तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने बताया ना कि पूरी स्टडी करनी हाँ, होती है हाँ। लेकिन हाँ जी, ट्रीटमेंट का होता है सर। अच्छा जी, हाँ जी कुछ बता सकेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर आप जैसे सर, कहेंगे जब वैसे। तक मैं उसकी पूरी स्टडी नहीं कर लेती तब तक बता पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। अच्छा जी, ठीक है मैडम, ओके, बाय बाय, ओके, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर मैडम अगेन। थैंक यू सर, विशिंग यू सर, ओके थैंक ओके। यू। Okay, moving to next, Subramanya Swami. Unmute and ask your question, Subramanya Swami. अभी आपने बोला लिगामेंट ट्रीटमेंट होता है, वो कितने दिन में रिपेयर करना है? पुराने लिगामेंट डैमेज ठीक हो सकता है क्या? सर टाइम का मैं बार बताती हूँ कि टाइम 10 नहीं। साल हो गया, 10 साल हो गया। हाँ सर, वही बोल रही हूँ, टाइम का मैं नहीं कह सकती हूँ जब तक पूरी स्टडी हो, लेकिन रिलीफ होता है। हाँ, अब इसको लगाएं, लंबे समय तक लगाएं, कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन रिपेयर होता है। आपने अभी अभी बताया आपका हाँ बोन फ्रैक्चर्ड बोन ठीक हो गया था बिना फिजियोथेरेपी। इट इज सरप्राइज टू हियर दैट वन। वो यस कितने दिन में रिपेयर करना पड़ेगा एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद? सर, मेरा तो 3 मंथ्स लगा था। मैंने आपको उसमें इमीडिएटली करवा दिया? काफी मेहनत की मैंने, लेकिन ये डिपेंड करता है ना सामने वाली की एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहीं डायबिटीज या और कुछ भी तो नहीं है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना रेगुलर है, कितने पॉइंट लग रहे हैं, कैसा डाइट वगैरह है, इन सब पर जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा आगे पीछे होती है। तो कोई और भी प्रॉब्लम जहाँ पेशेंट का है, बिना देखे बिना समझे किसी भी बीमारी में तुरंत आपका केस है सुनने या का बाद तुरंत ये प्रश्न मेरे सामने आया था, इसीलिए जी, पूछ रहा। हाँ नहीं सर, वही मैं बता रही हूँ कि हाँ, जब तक कि आप केस स्टडी ना करें आप नहीं बता पाएंगे किसी भी चीज का। तो एक हाँ। बार आपके सामने पेशेंट आए, पूरा सुन गए समझ गए, और 1 वीक का उसको सबसे पहले आप दे दीजिए, 1 वीक का ट्रीटमेंट दीजिए और उससे पूछिए कि उसको कैसा फील होता है, और उसके बेसिस पर और आप देख सकते हैं कि आगे उसको कितना और टाइम लगेगा। और दो क्वेश्चन है। यूजुअली जी डायबिटीज पेशेंट को एकोस्पिरिन देता है ब्लड को थिन करने के लिए। ये काम करने के लिए पीसीएम में और कलर थेरेपी में ट्रीटमेंट होता है क्या? ये बिल्कुल, लॉन्ग रन में लेना पड़ेगा इसलिए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इको स्प्रिन का काम करता है TW5 जो मैंने आपको बताया था। हाँ, हाँ, तो वो LU5। लगाइए और वेट एंड वॉच करिए, अपना ये देखते रहिएगा कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा थिन हो जाए, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो समय समय पर आपको टेस्ट वगैरह कराते रहना होगा। हाँ, और एक है ये लेग में वाटर रिटेंशन होता है, वो लंग्स में भी हार्ट में पास वाटर रिटेंशन होता है। ये दोनों का रीजन एक ही है क्या, अलग अलग है क्या? एक भी हो सकता है, अगर आपके किडनी वगैरह में प्रॉब्लम है तो लेग में ज्यादा आता है, हार्ट में है तो हाथों में ज्यादा आता है, और लिवर वगैरह में है तो पैरों में, हाथों में भी कभी कभी आता है। तो एक रीजन भी हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई तुरंत वो तो ये पूरी आपको देखनी लेग पड़ेगी। का वाटर लंग्स का वाटर रिटेंशन निवारण के लिए कोई पॉइंट है क्या कलर थेरेपी में टीसीएम में दोनों में? सर मैं समझ नहीं पा रही। ये लंग्स में वाटर कलेक्ट होता है। सर वाटर रिटेंशन जो होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है पिटेट टाइप, एक नॉन पिटेट टाइप। हाँ, तो ये दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना होता है, पूरी स्टडी करनी होती है, और जब पता चल जाता है तब उसका इलाज मैं करते पता हैं। करने का बाद ही करना पड़ेगा। हाँ ओके, थैंक जी, यू, थैंक यू। ओके सर। Okay, moving to next, अपूर्व नागर। अपूर्व नागर जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके कीजिए। या नमस्कार मैम। नमस्कार। आपसे कल मैंने पूछा था फूड एलर्जी के बारे में, तो मैंने डॉक्टर वॉल के बुक के अंदर देखा, तो उसमें मुझे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन मिला, जिसमें उन्होंने
डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में बताया, देन कार्बोहाइड्रेट और एक फैट का मिला। पर जैसे एलर्जी अगर है, सपोज विटामिन सी से एलर्जी है, मैंने आपको टोटाइस पार्ट 3 का एलर्जी डिजर्नेशन जी पढ़ने को बोला था। हाँ, वो देखा मैंने, उसके अंदर फूड का अलग से मुझे नहीं मिला, तो मुझे हाँ। मैंने फिर ये आगे वाली में देखा था। तो देखिए एलर्जी में कहाँ पर आया, आपका अंदर की ओर हो रहा है ना, तो आप उसका सीएमपी पॉइंट और जिस रीजन में रिएक्ट कर रहा है, नीचे की ओर है तो नीचे से रिलेटेड पॉइंट, बीच में है बीच के ऊपर का है तो ऊपर, उससे रिलेटेड पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। जी जी जी। पर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे खटाई से एलर्जी है या दूध से एलर्जी है, हाँ जी, तो उसको कैसे करेंगे? मैंने बताया ना कि आप देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका हाँ। रिएक्शन क्या हो रहा है। हाँ पार्ट में एलर्जी हो रही है, हाँ तो आप सीएमपी पॉइंट दे दीजिए और हाँ। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग कि जिस रीजन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करके दे दीजिए। अच्छा, और उन पॉइंट्स को मुझे सिलेक्ट करना है सभी को करना। हाँ जी जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैम मेरा कि एक पेशेंट है जिनको पैर के तलवे में कंकर चुभने जैसी फीलिंग है साल भर से। मैम, आपको हमने पहले बताया है कि ये पेशेंट वाला ना पूछें, कलर से रिलेटेड जो पढ़ाया गया उसको पूछें तो बेटर है ना। तो मैं फिर सबको अगर बाकी लोग पूछेंगे मैं मना करूंगी, एक को पढ़ाऊंगी तो मुश्किल होगा, इसलिए। ठीक है मैम। और एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि आपने तो खेमका सर के साथ में बैठ करके सब कुछ सीखा है, अब हमारे लिए आप ही खेमका सर है, तो हमें अगर और सीखना है तो हम क्या करेंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप मंथ में 2 दिन तो भी हमारे जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन आप रखिए मैम। अभी हूँ, अभी मैं कुछ फाइनल तो नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास में बहुत काम होते हैं। जी हाँ, होगा मैम, नेचुरली होगा। हाँ, मुझे रात में भी बहुत लेट हो जाता है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही बहुत महीनों से जी, और मुझे परेशानी हो रही है। कल से मेरे और भी नए काम शुरू हो रहे हैं, सुबह से शुरू होकर रात तक एंड होंगे, इसीलिए मुझे आज इसको फिनिश भी करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं मैम, पर आप मैडम टाइम निकालिएगा प्लीज हमारे लिए भी। हाँ, कमिटमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जब मुझे टाइम मिलेगा कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। Okay, moving to next. एक बार तो भी क्वेरी सेटिस्फाई करने वाला कौन है? कोई जी सुमन लता जी अपना क्वेश्चन कीजिए। हेलो मैम। जी मैम एक तो मेरे को ये पूछना था, जैसे फ्रैक्चर और लिगामेंट में जो आपने पॉइंट्स बताए हैं मैम, जैसे आपने तो पेन किलर नहीं लिया था मैम, बट पेशेंट कोई भी है तो सबसे पहले पेन रिलीफ चाहेगा, तो मैम उसके लिए हम क्या करेंगे? लोकल पॉइंट है ना आपके पास, मैंने पहले आपको कई बार बताया है कि जहां पर जाता हो वहां लोकल पॉइंट पर जो लोकल पॉइंट उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैम जैसे कौन सा पॉइंट समझी नहीं मैं। नी पर अगर है तो नी के अराउंड पॉइंट आते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है एल्बो के आसपास कर लीजिए। तो मैम जो मेन ट्रीटमेंट होता है उसके साथ उसको लगा सकते हैं हम लोकल पॉइंट्स को? अगर हम करेंगी, हम की बात करेंगी। हाँ जी मैम। अपनी बात कर रही हैं अगर आप? अपनी बात नहीं कर रही मैम। हाँ नहीं, किसी की बात कर रही हैं, ये आपकी से पेन है उस पर फोकस करिए।
हाँ जी मैम। एक जॉइंट, मान किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पेन है, कहाँ क्या क्या कितने पॉइंट बांधेंगे आप लोकल। इसीलिए तो कारण का इलाज किया जाता है ना, रूट कॉज का, हाँ जी मैम। जिस वजह से उसको निकाल दो। अब थोड़ा टाइम लगता ही है, हाँ इन जी। बिटवीन है तो फिर अपना किलर वगैरह यूज कर सकती हैं, या तो टॉलरेट करिए, भरोसा रखिए कि ये हाँ काम तो कर रहा है, करेगा आगे। हाँ जी। हाँ। मैम एक और मेरे को पूछना था, वैसे जैसे आप पेन किलर की बेस्ट रेमेडी बता दूं, ये हाँ हॉट वाटर यूज करिए। हाँ जी मैम। अगर आपको पेन हो रहा है तो तेज गरम, जैसे टी आप यूज करते हैं, वैसे तेज गरम 1 गिलास पानी लीजिए और पी जाइए। उससे हाँ। ब्लड सर्कुलेशन में इमीडिएट चेंज आएगा, और जो भी आपके टिश्यूज लेवल में फंसी होंगी चीजें निकल जाएंगी, और आपको पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ओके मैम। मैम जैसे जब कोई ऑर्गन मैम खराब होता है तभी उसकी फंक्शन भी खराब होता है मैम। हम जैसे कल आप बता रहे थे कि यिन और यांग टाइप डिजीज मैम, तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ऑर्गन में खराबी आती है, जैसे किडनी है फॉर एग्जांपल, किडनी में जब खराबी आती है तभी उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो मैम कैसे उसको करेंगे हम, यांग के लिए ट्रीटमेंट करेंगे या यिन के लिए? इसमें कुछ सिम्टम मैंने बताए हैं, बाकी सिम्टम बुक में अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसमें आपको मिला होगा, जो टाइप 7 वगैरह में है, 16 कई किताबों में है। अब क्योंकि ये मैंने नया आप लोगों को स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। हाँ जी मैम। इसलिए थोड़ा सा ये होता है। ओके मैम, जैसे एक और पूछना है, लूज टीथ और गैप्स अगर है तो मैम ये किसका साइन होता है, उसमें हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? स्क्रीन डेफिशिएंसी हो सकता है, हाँ जी और मैम। साथ में हाँ आपका हीट भी हो सकता है। ओके मैम। मैम और एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे बच्चों में जो क्रेविंग होती है, जैसे पाइका जिसको बोलते हैं, या फिर आजकल तो पाइका ही है मैम, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी बच्चे खाते हैं, चिप्स वगैरह ये पसंद करते हैं मैम, तो इसको या तो रोकने के लिए हम कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर उसका साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए मैं आप लोगों से आज के भी सेशन में, पहले भी सेशन बार-बार बताया कि जब तक सामने पेशेंट नहीं होता, श्योर नहीं होता है, हाँ जी। जनरल पर्सन की शॉप नहीं है ना, कि हाँ जी। आपने क्या सामने देखा बस वो वाला है, उसमें हमें चूज करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हमें पेशेंट का पूरा डिटेल नहीं पता, मैं नहीं कर पाती। हाँ बाकी जी लोग करते हैं, मैंने मैम, जो देखा तो ट्रीटमेंट वगैरह के ग्रुप बने होते हैं, हाँ जी। उनमें गलती से भी कोई एक बीमारी के बारे में पूछ ले, सपोज करिए किसी पूछा हाई बीपी का, ग्रुप में कोई पॉइंट बता दो, इतने सारे पॉइंट रेकमेंड कर दिए जाते, इतने सारे रेकमेंड कर जाते हैं, एंड नोबडी आस्क अबाउट डिटेल। कोई भी उसमें ये नहीं पूछता है कि कब से है, क्या है, पेशेंट की एज क्या है, दवा ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या है, पॉइंट के खजाने मिल जाते हैं। मुझे हाँ जी। ये तकलीफ होती है कि जिसको ये बीपी हुई होगी, अब उसकी बीपी और बढ़ेगी ये सोच करके मुझे इसमें से लगाने कौन से हैं, हाँ जी मैम। साइड इफेक्टिव है नहीं है, तो ये हाँ सोच के बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया है कि थोड़ा हाँ थोड़ा 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 करके कॉन्सेप्ट, हाँ फिर उसके बारे में समझे, फिर आप तो आपको एनाल्जेसिक पॉइंट मिल गया, एनेस्थीसिया पॉइंट मिल गया, शुरू से अंत तक सारी पीडी दे दी, सब कुछ दे दी है, आपको केवल पढ़ना ही तो है ना। जी तो मैम। वो पढ़ना तो आप ही करेंगे ना, सारे पॉइंट जो भी आप पूछते हैं सारा पीडीएफ में है, हाँ जी। एक बार आप उसको पढ़ जाइए, सब मिल जाएगा उसमें। हाँ ठीक जी है मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैम मसल पेन होता है या हेडेक होता है या किसी भी तरह का जॉइंट पेन होता है, या मैम मतलब इस तरह के जिसमें हमें छूने से तो दर्द होता है और मैम दबाने से हमें आराम मिलता है, तो मैम उसमें हम पॉइंट का सजेशन करना चाहिए, या फिर जैसे हेडेक भी है मैम उसमें हम आप अपना पीडीएफ उठा के खोल दीजिए, हाँ उसमें जी। यही लाइन लिखी हुई है, अगर दबाने से दर्द बढ़े तो क्या, और अगर रिलीफ मिले तो क्या। आप मैम का भी प्रोटोकॉल है उसमें, आपके मैम ये अर्थराइटिस कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दबाने से आराम भी आता है। है,
मैंने यही कहा कि मैंने सेम लाइन इवन लिखी है, इफ यू फील रिलीफ आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, देन ये क्या कहलाता है, और अगर आपको वर्स्ट हो जाता है पेन तो क्या कहलाता है। एक्सेस और डेफिशिएंसी में एक बार आप पीडीएफ खोलने का कष्ट करें। मैम वो खोलने के बाद ही मेरे को कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि जैसे कई बार ऐसे होता है ना, जैसे सामने से कोई आ रहा है, उसने यूं झटका सा मारा तो पेन बढ़ जाता है वहां पर, लेकिन उसी वहीं पे अगर हम दबाते हैं और ऐसे प्रेस करते हैं मैम तो हमें आराम आता है। तो इसमें ये कंफ्यूजन है कि उसमें हम क्या करेंगे। टोन का, इसमें टोन करेंगे मैम। हाँ अच्छा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, पेशेंट का टंग देख लिया, सिम्टम देख लिया, कंडीशन देख लिया, पेन की क्वालिटी देख ली, उसके हिसाब से चेंज होता रहता है ना। हाँ जी मैम। लेकिन ये पीडीएफ खोल के देख, जितना पूछा है सब पीडीएफ में भरा पड़ा है और लाइन इवन लिखी हुई है, उसके बाद भी सेम क्वेश्चन करेंगे मैं, सेम आंसर होती है तो टाइम का वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ जी मैम। ओके ओके मैम, जी जी थैंक यू मैम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, श्याम सुंदर तिवारी। आप एक बार फिर से अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए, श्याम सुंदर जी। हेलो नमस्कार जी। मैडम, ये जय राम जी की। जय राम जी। पहले तो ये बोलना चाह रहा था कि जो रेसिडेंशियल क्लास के टाइम पे आपका जो फ्रैक्चर हुआ था वो रेसिडेंशियल क्लास में मैं था। ओके अच्छा। और दूसरा ये कि स्लीप एपनिया के बारे में कुछ बताइए। स्लीप एपनिया के बारे में मैं बताऊं, ये कहाँ मिलेगा, ये गूगल पर आप सर्च मारिए, स्लीप एपनिया मिल जाएगा। वो तो मिल गया। मिल गया। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए आप हमें डिटेल भेज दीजिए तो उसके पॉइंट में आपको भेज दूंगी। ठीक है मैडम। और एसआईटी में क्या करना चाहिए? एसाइटिस का चैप्टर आप मिल जाएगा टेटाइस पार्ट 10 में, लिवर चैप्टर में, या टेटाइस 15 में, लिवर उसमें एसाइटिस चैप्टर है 15 में, वहां पर मिल जाएगा। ओके मैडम, जी धन्यवाद। और ये इंटरफेसिया के बारे में अगर इंटरफेस के बारे में टेटाइस 22 में मिल जाएगा। अब रिलेटेड चैप्टर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ की इंटरफेसिया की बात करता है। ओके जी जी, धन्यवाद। नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, पूनम भारती। पूनम जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। पूनम जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना कीमती समय और ज्ञान दिया और हमारा मार्गदर्शन किया कि हम और अच्छे से सीख सकें और लोगों की सेवा कर सकें। जी मैम मुझे एक बात पूछनी थी कि मान लीजिए अभी किसी को एडवांस लेवल में टंग डायग्नोस नहीं आता और उससे अलग अलग लीवर की स्टैग्नेशन या ये सारे डायग्नोस नहीं आते और उसको बस ये सामने दिख गए कि ये स्पिरिचुअल स्टेट को इम्प्रूव करने की पॉइंट है ज़ीक्लिफ पॉइंट। तो एक स्पिरिचुअल पाथ पे मतलब एक स्पिरिचुअल सीकर है, वो एंथुसिज्म भी चाहता है, उसको ईगरनेस टू अचीव भी चाहिए, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, विश्वास, डिवोशन, ग्रेविटी, मतलब उसको लगता है कि उसके सारे ही मतलब गुण चाहिए। तो मैम इज इट पॉसिबल कि वो सारे ज़ीक्लिफ पॉइंट को एक साथ टोन कर सके? अगर उसे लगता है उसे इतना नहीं पता डायग्नोस लेवल का, तो उसको सिर्फ मेरिडियंस पता है और पॉइंट पता है, तो क्या वो सारे टोन कर सकता है? देखिए स्पिरिचुअल लेवल हमारा 4th लेवल है, यानी अगर आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसमें आपके लैडर्स हैं, जो स्टेयर्स हैं, उसके 4 स्टेप्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। जी मैम। अगर हम स्पिरिचुअल पे चढ़ना चाहते हैं, हमारी 3 लेवल्स क्लियर है। इफ योर 3 लेवल क्लियर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? आप तो 4th चढ़ ही जाएंगे ना, लेकिन क्या होता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ, मैं बेईमान हूँ, जी, लेकिन आप हमें किसी के सामने जाके बेईमान कह दीजिए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
मैं आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दूंगी। जी आप मैम। किसी को चोर बोल दीजिए, वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन आपने उसको चोर बोला है तो आपने चोरी करते हुए देखा होगा, तभी तो आपने बोला। जी वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे ही हम अपनी कमियों को खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हाँ वो तो सब ठीक है, बस हमें स्पिरिचुअल पढ़ा दो जी आगे। तो ऐसा नहीं है। हम स्पिरिचुअल में आए ही क्यों हैं? अपनी इच्छा से आए हैं। हमें बुरा मत मानिएगा, सब मैंने देखा है कि जो लोग सत्संग में या स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं अर्ली एज में, उनमें दो चीजें होती हैं। जो पहला सबसे ज्यादा रीजन होता है वो होता है परिवार से उपेक्षा महसूस करना। उन्हें घर परिवार में ये स्थिति ज्यादातर लड़कियों में होती है, या लड़कियों का मतलब अनमैरिड से भी है और मैरिड से भी है। तो जहां पर ये चीजें होती हैं कि इग्नोरेंस में नेग्लेक्ट किया जाता है, वो इधर चले आते हैं। तो उनमें वो चीजें गांठ नहीं रहती है। मेल में भी ऐसी ही है, ज्यादातर मेल भी इसी कैटेगरी से करके स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते हैं। अब बहुत ही रेयर मिलेंगे जिनके अंदर स्पिरिचुअल का सीड होता है, उनके 3 लेवल्स ऑलरेडी क्लियर हुए हैं, अब वो अपना उस की तरफ बढ़ने के लिए ही आते हैं, लेकिन इनकी जो नंबर है बहुत कम है। तो जहां पर भी ये बात आ रही है कि हमारे सारे लेवल क्लियर हैं और हम 4th लेवल पे आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर 3 लेवल आपने क्लियर किया है तो 4th आपका अपने आप ऑलरेडी ओपन हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि हम अवॉइड कर रहे हैं, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, लिवर स्टैग्नेशन का इलाज करना होता है, क्योंकि है तो लेकिन शो नहीं कर रहा है, है बैठे बैठे वो गांठ बनेगी। अब वो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर तो कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है ना। इसलिए अगर मेरे द्वारा कहीं से भी आपको कोई हर्ट होता हो तो वेरी सॉरी, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया, मे बी रॉन्ग। ठीक है? नहीं मैडम, आप ठीक कह रहे हैं। आप शुरू से स्पष्टवादी रहे हैं, पर वही है कि जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअल पाथ पर वही आगे आ रही हूँ या जो मतलब जिनको शिक्षा मिली हो। बहुत सक्सेसफुल लोग भी यहाँ पर आते हैं, ग्रो करते हाँ, हैं बिल्कुल। स्पिरिचुअल लेवल पर। अक्सर ठीक है मैम। परेशान होने के बाद आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनके घर में सारी लग्जूरियस लाइफ उन्हें जी ली, सब कर लिया। उनको उनका मन नहीं है इस दुनिया में रहने का, उनका मन विरक्त हो गया। और वो विवेकानंद जैसे जो कैटेगरी के लोग आते हैं कि वो कर जाते हैं, नहीं हमें स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ऐसे लोग कम मिलते हैं। जो जी मैंने मैम। अपने आसपास के माहौल में देखा है वो मैंने आपको शेयर किया। जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ ऐसा ही सत्य हो। हाँ मैम, हो कोई सकता लोग ईश्वर के हाँ, सच्चे पिपासु भी होते हैं जो कि जी सिर्फ ईश्वर के लिए आते हैं इस मार्ग पर। हाँ, मैंने कहा ना इनकी संख्या बहुत कम होती है, जी ज्यादातर मैम। आपको यही मिलेंगे। तो इनके लिवर की स्टैग्नेशन को आप क्लियर कर दीजिए तो इनको फिर स्पिरिचुअल लाइफ में इजीली बढ़ने में मदद मिल जाएगी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्ते। जी नमस्कार। चलिए आपका सेशन मैम एक और है, एक है विजया जी का केवल, जी 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 अगर आप ले पाए तो। हाँ हाँ जी जी विजय जी, आप ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। Good evening, madam. Namaskar. वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। Very impressed by your ligament case, and we are motivated. Thank you so much. Okay. My question was fungal infection between the toes, webs में आता है ना, उसके लिए कुछ कलर थेरेपी में है? हाँ, आप टोटाइस 22 खोल लीजिए। 22 नहीं है मैडम मेरे पास। नहीं हूँ, मेरा मैडम से कांटेक्ट कर लीजिए। ओके। कांटेक्ट नंबर मैं दे सकती हूँ। ओके। है ना? तो आप उनसे बात करके वो पॉइंट ले लीजिए और उसका कलर आप फिलअप कर लीजिए। मैंने कलर पे आपको डिटेल बता दिया। कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा, वो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है? किसको पूछना है मैडम? आप हुमेरा मैडम से कंसल्ट कर सकती हैं। हुमेरा मैडम। हाँ, वैसे तो बताया है मैंने पॉइंट आपको, हाँ। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ,
पॉइंट आप सर्च करिए, पॉइंट सर्च करके उसको कलर में कन्वर्ट कर लीजिए। इट्स अ कॉमन पॉइंट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, 3-4 पॉइंट्स है केवल। ओके। हाँ हाँ। और फिर ये कोरोना वैक्सीन के बारे में जो आता है, शुड एनीबडी टेक इट, व्हाट इज योर एडवाइस? कोरोना वैक्सीन अभी जो निकल रहा है, शुड पीपल टेक इट? आपका एडवाइस क्या है उसके ऊपर? मैं समझ नहीं पा रही, आवाज बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गई। कोरोना वैक्सीनेशन भी निकल रहा है ना? हाँ, इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं ना थोड़ा सा विद्रोही टाइप की हूँ। या वी आल्सो डोंट वांट, मींस उसमें कैसे आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके? हाँ, जो चीज मुझे समझ में नहीं आती उसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। ओके। मेरे ऊपर एक भी वैक्सीन आज तक नहीं लगी है, चाइल्डहुड से अब तक में। ओह, वेरी गुड। हाँ, और मुझे न पोलियो है, न मुझे कोई ऐसी बीमारी आई। करेक्ट। मतलब जिनके एंटीडोज आते हैं, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे कुछ भी नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों एंटर कराऊं अपने बॉडी में दूसरे वायरस। जहां तक कोरोना वैक्सीन के वायरस की वैक्सीनेशन की बात है, तो मैं सहमत नहीं हूँ। ओके। मैं खुद इस पे बोल रही हूँ, ये सब तक बात जाएगी, इसके बावजूद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। अभी इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। जो इसका टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट है वो खुद ही ट्रायल पर है, वो आपकी जांच के लिए नहीं है, वो खुद ही रिसर्च का एक साधन है कि वो मशीन कितनी ऑथेंटिक है। वो मशीन भी 50% ऑथेंटिक है, तो मुझे है या नहीं है। फिर उसके अलावा एक मुझे समझ में आता है कि आप कोरोना चेक कराने जाते हैं, अगर आप नेगेटिव भी हैं तो जहाँ पे आप चेक कराने जा रहे हैं, जिस क्लिनिक में, जिस पैथोलॉजिकल लैब में, वहां कितने लोग पॉजिटिव वाले भी आए होंगे। तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि मैं नेगेटिव होके जा रही हूँ, पॉजिटिव होके वापस आ सकती हूँ। करेक्ट। तो ये भी मुझे समझ में आता है। और दूसरा, वैक्सीन की बात रही, तो जब वायरस है और अब तक में ये कई बार अपना म्यूटेशन कर चुका है, अभी उसी म्यूटेशन का एक नया स्ट्रेन फिर आ रहा है जो ब्रिटेन से आया है। इतना इसमें गेम चलेगा, कब तक चलेगा गॉड नोस, लेकिन ये वैक्सीन कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि वायरस आपने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया कि आप जाकर के मार के तो आप मेरी फोटो भेजेंगे और ये गेटअप भेजेंगे। हमने अपना कैप चेंज कर लिया, हमने जैकेट चेंज कर ली, हमने पैंट और जीन्स टॉप डाल करके आपके सामने आ गई मैं। अब जिसको आपने भेजा था वो किसको मार पाएगा, वो तो उसके लिए तैयार था। अब वो तो हमें पहचान नहीं पा रहा ना, हमने तो अपना रूप बदल लिया। तो वो जो वैक्सीन बनी थी जब मुझे मारने के लिए मेरे पास आते, मैं खुद ही चेंज हो गई। तो यही रीजन है कि आज तक वायरस जो होते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन, उसका भी कोई वैक्सीन नहीं बना, उसकी भी कोई मेडिसिन नहीं बनी। ये भी वायरल ही है, फ्लू लाइक डिजीज है, इसका भी वैक्सीन कभी भी नहीं बन सकता, कभी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जितनी स्टडी थोड़ी बहुत मेरी है उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तो वैक्सीन के बारे में मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन तो यही है, बाकी मैं नहीं जानती। नहीं, आई वांट योर ओपिनियन। We cannot tell anybody, हमारा भी it's not advisable। जब आपको डिजीज का सिम्टम नहीं पता, जब आपको उसका पॉजिटिव फैक्टर नहीं पता, जब आपकी टेस्टिंग का कोई किट अच्छे से तैयार नहीं है, वैक्सीनेशन कैसे बन जाएगी? और इतनी बार म्यूटेशन कर चुका वो। अभी जब छींक मारती हूँ, मान लीजिए मुझे वायरल हो गया, मैंने छींक मारी, क्यों? आपको वायरल इन्फेक्शन की दवा नहीं है, मैंने छींक मारी तो जो वायरस मेरे में मौजूद थे तो आप में जाके रूप बदल देते, इसी म्यूटेशन बोलते हैं। इतना फास्ट उनमें कैपेसिटी होती चेंज करने की अपने आप को। तो जब आप में गए और वो चेंज हो गए, तो जो मेडिसिन खाऊंगी वो आपको फायदा करेगी नहीं करेगी, क्योंकि वायरल आपको है, वायरल मुझे भी है, लेकिन जो मेडिसिन मुझे लगेगी वो आप पे नहीं करेगी। इसीलिए आज तक वायरल की कोई मेडिसिन नहीं बनती। मेरी बातों से यहाँ पर शायद लोग सहमत होंगे।
ओके, वन मोर क्वेश्चन लास्ट मैडम। आपने आई ऑर्बिट का ऐसा मसाज वीडियो दिखाया था, सो उसमें हम ऑर्बिट कैसा एक एक पॉइंट को प्रेशर करके जाना है कि जस्ट लाइट फेदर टच? लाइट तो नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए, एकदम माइल्ड ना हो कि पता ही नहीं चले, और आप सिंपल प्रेशर देते जा सकते हैं। ओके, जस्ट ऑल अराउंड ऑर्बिट में वो बोनी सॉकेट में प्रेशर देना है। हाँ जी, हाँ जी। Some 5 to 10 times per day? या। अरे उस सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। आप इस लॉकडाउन में मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मैंने YouTube अपडेट कर दिया, नहीं तो वो ईयर से ऐसे डेट पड़ी हुई थी। कोई वीडियोस नहीं, कुछ नहीं, टाइम की वजह से। अभी थोड़ा टाइम मिला तो उसको मैंने अपडेट किया, तो मैंने देखा अच्छी खासी उसमें ये थोड़ी वीडियो हो गई। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम तो एक बार वहां पर सर्च कर लिया करिए। आप लोग तो जानते ही होंगे हमारे चैनल को अच्छे से, और जब ना मिले तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आपको कितना दिन लगा मैडम वो स्पेक्स निकालने के लिए? 6 months? मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ। ओके। जब मैंने लॉकडाउन में पहली फेसबुक लाइव किया, तो मैंने स्पेक्स लगाया, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही थी, मुझे लगा शायद वो कुछ लग गया होगा, तो मैं एंकी से उसको ठीक कर दी। तो मैंने देखा, जब निकाल मैंने स्क्रीन देखा तो मुझे ज्यादा क्लियर दिख रहा था। फिर मैंने उसको लगाया तो मुझे नहीं दिख रहा था, फिर मैंने उसको हटाया, फिर मुझे क्लियर दिख रहा था। मुझे समझ में नहीं आई कब से हुआ, कैसे हो गया। तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से मेरे आंख में चश्मा लगा ही। वेरी गुड। या ठीक, हमने भी वैसा शुरू करके देखा। ओवर हो रहा है, अभी अपनी बातों को यही हम स्टॉप करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे जब कभी, फिर आगे की बात। हैप्पी न्यू ईयर मैडम। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल, एंड बहुत बहुत नमस्कार कोऑपरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, और साइलेंटली पेशेंटली लिसनिंग के लिए, और थोड़ा थोड़ा परेशान करने के लिए भी। आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू एंड